आई एम नॉट रियली श्योर कि मैं कैसी हूँ. आई नेवर वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस. मेरे को पैसा मिल रहा है, फेम मिल रहा है, तब भी मुझे सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट मैटर कर रही थी. क्यूट विलन इज द टाइटल दे हैड गिवन टू मी. उनको लगता है या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए. क्यों? दोनों क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं होना चाहिए? द बिग बॉस सीजन 4. A human without ethics is an animal. TRP मुझे बहुत मिला, एलिमिनेट होने के बाद भी मिला, so I don't have any regrets. शाहरुख खान तो है ही, हम सबके इंस्पिरेशन है वो. SRK fan. The way he has conquered the world now, I just want to perform a strong woman character. Time for chai. Hello everyone and welcome to the second episode of our show Time for Chai. Today's episode is my personal favorite because I have my favorite Marathi mulgi on board. She started her journey with theatres, moving into some famous Marathi serials and then into some amazing Marathi movies. She didn't stop here. She's also been a part of the famous reality show Bigg Boss, and right now she's here with me to discuss about her life, her journey, her thoughts. So ladies and gentlemen, Ruchira Jadhav. Thank you so much, Janvi. Thank you so much for having me on Time for Chai. So Ruchira, I'm excited because you know आपके fans ने आपको TVs में देखा है, movies में देखा है, reality show में देखा है, and I'm sure they have a lot of questions कि Ruchira personal life में कैसी है, वो क्या खाती है, वो क्या पीती है, वो fitness कैसे maintain करती है. So you know we are going to just rewind back and start from your journey from you know your childhood कि आप बचपन में कैसी थी. And like आपको क्या अच्छा लगता था and how did you form this dream of becoming an actress? या बचपन में मैं बहुत शांत थी. अब भी मैं शांत हूँ और ये जब भी मेरे घर वाले सुनेंगे तो वो हंस पड़ेंगे क्योंकि of course there is a major change in my like an introvert personality. child becoming a major actress right now is obviously. Yeah, but still they call me introvert only. I am not really sure कि मैं कैसी हूँ, but yes, I have a very close circle, you know, a very small circle and full of my people. Right. And with them, I'm extrovert. So I don't really know what exactly this is called, ambivert, I guess. But I don't want to put myself in on all these terms. I'm just the way I am. And so if I have to define it in one line, so I would say that I just like to share my energy with my close people only. Right. So, because I very much believe that It's like a give and take, you know, like give and you take, want to it's be an real. energy that we are sharing. Yeah. It's not the words, it's not the whenever we share any experience or anything, it's an energy. Yeah, you want to be, you know, you want to be in a circle where people are actually appreciative instead of faking it to be appreciative. So it's nice, you know, you having the closed ones, like even having 2-3 people, but they are real with you. There should not be any filter. Yeah, I no prefer filters. Yes, unfilteredness. yes. Definitely. I want to know what was your inspiration because you know everybody's like saying Shah Rukh Khan or Salman Khan or some other person. So what was your inspiration? So it was never like that. I'll tell you, I never wanted to become an actress. I had never dreamt of becoming an actress because it's somewhere because मैं जिस background में मैं जैसे जिस family से पली बड़ी हूँ वहाँ पे इसका कोई background ही नहीं है. So बचपन में adding one more answer to it, like how I really was in my childhood. मैं बहुत sharp और बहुत bright student रह चुकी हूँ. So I have scored 86% in my 10th. उसके बाद मेरा MSc हो चुका है. So in my graduation and post graduation as well, I have scored 75%, 70%. मतलब distinction, college में second आना, ये सब. तो ये सब हो चुका है. And of course, जब भी हम लोग ऐसा score करते हैं, तो हमारी family तो तब तो इतना इंटरनेट गूगल इतने सारे इंजीनियर बनेगी. Exactly. ये तो साइंस ही लेगी, बच्ची मेरी डॉक्टर बनेगी. तो ऐसा सब था ऑब्वियसली, बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट कि मेरे पेरेंट्स ने कभी प्रेशराइज नहीं किया कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है. ऑफ कोर्स I had dreamt of something and that was I wanted to be a fashion designer because I used to be really fascinated seeing all those fashion shows, models walking and I was really keen on doing that. लेकिन पापा ने फिर से कहा कि नहीं, you have to complete your graduation at least and then you can pursue whatever you want. Right. तो फिर and whatever happens for good. So 12th के बाद I wanted to switch but he was very adamant, no, if you want to choose the art side or anything you can
continue that as your hobby, but no, not as a career right now. You have to finish your BSc. Studies. हाँ, at least graduation, because that is the term, no, mediocre term. Yeah, like Indian It parents has to be safer like side that, कि ठीक है कि कर लेना but backup पहले होना चाहिए. right degree होना चाहिए बेटा बाद में जो चाहिए कर लेना but ये I had complete taken करो. my dad to various seminars, fashion designing seminars, and Oh he used to God. he used to be there on call. मैं अटेंड कर रही हूँ सेमिनार और फिर ढूंढ रही हूँ पापा को, पापा है क्या नहीं है. तो फिर ऐसे बहुत बार हो चुका है कि आई हैव ट्राइड मेनी टाइम्स. एंड जैसे मैंने कहा, बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे ये सब पता नहीं होता कि इसका करियर में स्कोप कितना है ना, सो देयर बी ऑफ कोर्स लाइक दैट. मतलब इट इज वेरी वेरी मच वैलिड And फ्रॉम also- देयर साइड. Yeah, also being like the first child, आपने जैसे बोला कि आपके फैमिली में Yeah, किसी का elder ऐसा बैकग्राउंड नहीं था. elder daughter, being elder daughter also in the Setting family. examples, the big responsibility. Exactly. But how was like मतलब वो journey कैसा था? Was it like smooth या फिर आपको आपने एक audition दिया and immediately you cracked it, Yeah, like you know with the I was just serial. coming to that. Yeah. So while completing the graduation and then later post graduation, because I used to love study as well. So I loved studying, और science मेरा favorite subject भी था. But वो सब करते करते I got introduced to theatre. जो ये मेरा जो एकमात्र टैटू है मेरे शरीर पर, वो ये है कि when I do this नमस्ते मुद्रा, and this is the concept behind that. So these are the theatre masks. Wow. So ये मैंने बनवाए थे. That's really cool, yeah. Yeah. That's amazing. I got introduced to theatre. Theatre करना शुरू किया, and I started loving that thing. मतलब ये बहुत unintentional था कि बस मुझे मज़ा आ रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ. Right. और फिर मैंने एक्टिंग की, एक कुछ प्लेस भी लिखे जो 1 act प्लेस रहते हैं. सो बहुत सारे कॉम्पिटिशंस में मुझे एक्टिंग के लिए तो प्राइज़ मिला ही है, राइटिंग के लिए भी प्राइज़ मिल चुका है मुझे ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज. एंड सिंस देन द जर्नी स्टार्टेड. And when I got the prize, no, there was one competition. It was state level competition, and in that particular competition, I got Best Actress prize for the play and second for the writing for that particular play. And when they announced my name, there's this auditorium full of students, and they were also cheering for my name. And that was like, oh my god, क्योंकि हमारे कॉलेज में ना थिएटर बैकग्राउंड नहीं था. आई वॉज द वन अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड ऑब्वियसली जिन्होंने थिएटर बैकग्राउंड फॉर्म किया हमारे कॉलेज में. सो देयर वर मल्टीपल कॉलेजेस, आपको भी पता है, जहाँ से बहुत सारे मराठी के स्टार्स निकल चुके हैं. जैसे कि अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो MD, रुइया, रूपारेल, ये सब भी कॉम्पिटिटर्स थे तभी. एंड इन दैट कॉम्पिटिशन टू गेट दी It's a big thing. इट्स अ बिग थिंग. और वो मेरा फर्स्ट और सेकेंड ईयर ही था. मैंने अभी शुरू किया था, 2-3 प्लेस ही किए थे, एंड आई गॉट द प्राइज. सो दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड, ओके, आई एम लविंग दिस, so why not pursue this And as the my people career? are also loving it. Like it's not also Yeah. like only you are like okay I'm too good, but people are also loving it. Like you getting prize and the appreciation, like you said, सब ताली बजा रहे हैं, सबको मजा आ रहा था. Exactly. That moment so that is is also kind of surreal, you know. Yes. और तभी that was my moment, like कि अभी मुझे पता चला है कि this is the thing that I want to do in my life. It is giving me happiness. So no matter what, I'm going to do this. And then convincing the parents itself is a bigger task. Of course, they never opposed, kind of, but again, they were very curious कि ये कैसे होगा क्या. But I would just like to thank my dad. He never asked me a single question. उनको सिर्फ तभी मुझे चैलेंज यही होता था कि थिएटर कॉम्पिटिशन से ना हम लोग लेट मैं घर पे जाती थी. तो पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है. एंड ही वाज लाइक ये क्या है, ये थिएटर मतलब कर क्या रही हो एग्जैक्टली. एंड देन आफ्टर फ्यू मंथ्स ना ये जब प्राइजेस मिलना चालू हुए, तो फिर न्यूज़पेपर में जब मेरा फर्स्ट आर्टिकल आया विथ माय नेम, विथ माय फादर्स नेम इन इट, यू नो, रुचिरा रविंद्र जाधव. सो दैट वाज ए प्राउड मोमेंट विथ माय पिक्चर एंड हमारे जो ड्रामा का फोटो था. सो दैट्स व्हेन ही रियलाइज्ड कि ओके, मतलब बच्ची कुछ अच्छा ही कर रही है. शी इज अ स्पेशल वन. गिव इट हर ओन टाइम फॉर दैट. एंड सो ही नेवर बैक्ड ऑफ. That's lovely. I mean, I always say it, having your parents' support in a career like this is It's amazing. a blessing. It's a blessing. It's a blessing for sure. So like we have understood your journey. Now अभी थोड़ा हम लोग ऐसे इस पे जाते हैं कि आपका टेलीविजन का एक्सपीरियंस कैसा था. Like your first television या फिर you know your second or third, आपका शो कौन सा फेवरेट था, क्या एक्सपीरियंस था, क्या नया सीखने मिला. You know, थिएटर से लेके एक्चुअली शूट करना सीरियल्स के लिए
वो एटमॉस्फेयर कैसा था, एक्टर्स कैसे थे, वो दे वेलकमिंग, वो जर्नी कैसा था? आई रिमेम्बर वेरी प्रिसाइजली कि थिएटर तो लाइव रहता है ना, मतलब लाइव परफॉर्म करना है ऑडियंस के सामने, बस Right. जो भी गलती भी होगी तो फिर वो प्रेजेंस ऑफ माइंड से यू जस्ट हैव टू कवर अप Cover दैट, up, yes. और वो पता भी नहीं चलना चाहिए, और उसमें कभी कभी ह्यूमर भी आ जाता था, तो वो मतलब हम क्रैक करते थे, तो Yes. उसमें ना बहुत सीखने को मिलता है थिएटर में। एंड जैसे कि आपने कहा कि हाउ आई गॉट शिफ्टेड टू टेलीविजन, तो वैसे ही ना मुझे ऑफर्स आने स्टार्ट हो गए कि यू कैन कम टू द ऑडिशन, नॉट डायरेक्टली दे वर ऑफरिंग द रोल, ऑब्वियसली इट वाज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो फिर मैंने ऑडिशंस जब भी मैंने पहला दिया, तो फिर आई गॉट टू नो कि ये थिएटर एंड कैमरा इज लिटिल बिट डिफरेंट। सो ग्रेजुअली जैसे जैसे हम ऑडिशंस देते जाते हैं ना, वो सीखते जाते हैं, सो दैट वाज अ लर्निंग प्रोसेस इटसेल्फ। फिर आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, और तब भी मुझे मेरी फर्स्ट सीरियल ऑफर हुई, मतलब मैं गई, ऑडिशन दिया, आई गॉट सिलेक्टेड, एंड देन कट टू ऑन द सेकेंड डे आई हैड टू जॉइन। तो फिर मैंने ना वो शूट भी किया, एंड हियर आई वाज डूइंग थिएटर एज वेल इन द कॉलेज, सो आई वाज रिप्रेजेंटिंग माय कॉलेज एज अ लीड गर्ल, एंड हियर आई वाज डूइंग टेलीविजन एज वेल। सो वो सीरियल भी अच्छा खासा चल रहा था, दे टोल्ड मी लाइक 1 या 2 महीने का कैमियो है, इट वाज फॉर स्टार प्रभा अगेन, एंड सो आई वाज लाइक ओके आई कैन डू इट। 2 महीने का है, और यहाँ पे कॉलेज में मुझे 2 महीने के बाद एक कंपटीशन में उतरना है, तो तब भी आई हैव टू गिव टाइम टू माय कॉलेज, दैट्स माय प्रायोरिटी एंड ऑल, ऐसा था मेरा। और फिर मैंने बोला ओके इट इज प्रीटी सॉर्टेड, मतलब कॉलेज में भी कैसे दे यूज्ड टू कॉल मी दीदी, क्योंकि आई वाज द सीनियर मोस्ट, और फिर बहुत सारे जूनियर्स वो सीख रहे हैं, ऐसा सब ना, वो You were like known, like या मतलब वो हमारा ही थिएटर ग्रुप you था ना। started everything. Exactly. Like you said, So start it became like a family, second Yeah. family I would say, कि वहाँ पर जाना, उनको सिखाना, मतलब खुद भी सीखना, obviously I also learned from someone and then giving that knowledge to the younger generation. Right. तो वो बहुत amazing process रह चुका है, and in this particular zone ना, जब भी वो cameo मेरा बढ़ रहा था, कि of course they liked the track, so they wanted to extend it, but I was like, मतलब कोई भी रहेगा तो बोलेगा obviously मेरे को पैसा मिल रहा है, फेम मिल रहा है, ये सब चीजें तभी सही नहीं बात है। समझती थी बिल्कुल भी। Yes. तब भी मुझे सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट मैटर कर रही थी, नहीं, माय commitment is to my college, sorry I cannot do this is what I said, and I left that show. Oh So my I don't have any regrets now, I should tell you, because this is commitment that I followed, and I'm very much proud of myself about I have that. to say this, एक बार जो मैंने commitment कर दी, तो फिर मैं किसी की नहीं सुनती. It's actually for you also, I Yes, feel. भाईजान की fan हूँ मैं। Lovely. What about like co-stars? कौन सा co-star आपका favorite था, या co-star, you know, in terms of actress also, कौन सी co-star आपकी favorite थी in serials? फेवरेट ऐसा पर्टिकुलर तो कोई है नहीं, एज आई सेड आई हैव अ वेरी क्लोज सर्कल, Yes. बट जिनके साथ भी मैंने काम किया है ना, वो बहुत अच्छा रिलेशन है मेरा उनके साथ। सो माझ्या नवऱ्याची बायको I have, Yeah, your role in that was Yes, like a yes, yes. major thing. So that उसके was बारे the, में कुछ बोलो यार. major part and Yeah. major serial that I Yes. did, and Abhijit then, and my current show is also Abhijit, so there are 2 Abhijits जो मेरे co-actor रह चुके हैं, Yes. and yeah, those 2 are my favorites, I can say. Lovely, lovely. And then वहाँ से फिर movies में जाना, you know, आपका like बहुत shifts हुए, like theaters and the TVs and now movies. Movies के साथ कैसा experience था? Movies, I enjoy doing movies the most, क्योंकि वो ना एक क्या बोला, एक compact procedure रहता है, एक 3 months, 4 months, 6 months, sometimes it also takes an year, जो दर्शकों को ये बात नहीं पता रहती, उनको क्या लगता है एक मूवी है, देखी हो गई, बट उसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रोसेस रहता है कि प्री प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन, दैट इज़ द एक्चुअल शूट, और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन। तो पोस्ट प्रोडक्शन के बाद तो मूवी कभी रिलीज होगी तो ये हमें भी नहीं पता रहता है, बट स्टिल परफॉर्मिंग इन द मूवी इटसेल्फ ना, क्योंकि वो कैरेक्टर डेफिनाइट होता है कि इस कैरेक्टर का ये ग्राफ है, तो वो पहले से ही स्टडी करके रखते हैं हम लोग, और फिर उसमें जितना इनपुट्स देना है पहले ही दे देते हैं, डायरेक्टर के साथ डिस्कस करते हैं। सो इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस दैट आई फाइंड, एंड दैट्स व्हाई आई लव डूइंग मूवी द मोस्ट। और सीरियल्स में मेरा क्या होता है कि सीरियल्स में ना कभी भी कैसे भी चीज़ें बदल सकती है, Right. बट दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ना, कि आज जाकर मुझे पता चल रहा है, कभी कभार तो ऐसे होता है कि ओ मेरा कैरेक्टर ऐसे भी बात कर रहा है, बट देन वहाँ पे आपका कन्विक्शन काम में आता है। सो इनकेस अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, या फिर आप खुद कन्विंस नहीं हो ना, सो यू डोंट हैव एनी राइट टू से कि नो आई वोंट डू दिस। मैं पहले ऐसे बहुत करती थी सीरियल्स में, क्योंकि बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट मुझे लॉजिक चाहिए रहता है,
सो वही दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट एक्टिंग कि ये जो सभी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, थिएटर हो, सीरियल हो, मूवीज हो, उसमें बहुत सारी ये माइनर चीजें ना थोड़ी बहुत चेंज रहती है, बट रेस्ट वन थिंग दैट कनेक्ट्स ऑल दिस मीडियम्स इज दैट यू जस्ट हैव टू परफॉर्म फ्रॉम योर सोल, दैट्स इट, यू जस्ट हैव टू बी इन योर कैरेक्टर एंड सरेंडर योरसेल्फ टू द आर्ट एंड द कैमरा एंड रेस्ट लिव इट अप टू द ऑडियंस. Yeah, I think it would be easy for you because आपका कैसे रहना है, it is your interest, it's your love. जैसे आपने बोला कि when you started performing, the appreciation you got, you know, you always loved it. So भले ही कोई भी platform हो, theater हो, serial हो, movies हो, या reality show भी हो, you just enjoy it, you just love it and you're just real with it. Yeah. Like that. Okay. So like recently you have done a movie. आपने जो मूवी में काम किया है उसमें आपने घोस्ट का कैरेक्टर प्ले किया है, यू नो, लाइक राइट नाउ यू वर टॉकिंग अबाउट, यू नो, मोल्डिंग योरसेल्फ इनटू कैरेक्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो इट इज समथिंग वेरी सुपरनैचुरल. तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया था आपने? आप मैंने जब स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे बहुत मजा आया क्योंकि आई एम द घोस्ट और ये सब, और वो घोस्ट है ना, मेरा एक क्वेश्चन था डायरेक्टर के, कैसे दिख रहा है ये घोस्ट, मतलब मैं बहुत डरावनी वगैरह दिख रही हूँ क्या? अभी जिन्होंने भी हमारी टॉप की बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी है जो मेरी फेवरेट्स भी है जिन्होंने घोस्ट परफॉर्म किया है, उनको कोई ना कोई तो VFX या फिर वो रहता ही है. सो माय डायरेक्टर जस्ट सेड नो, यू जस्ट हैव 1 or 2 शॉट्स लाइक दैट, बट रेस्ट ऑफ द मूवी में यू आर जस्ट लुकिंग सुपर क्यूट, सुपर गुड, यू आर जस्ट वेयरिंग नाइस साड़ी एंड ऑल. सो आई सेड यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, आई मीन आई वुड डेफिनेटली लाइक टू डू दैट. एंड उसमें ना बहुत सारे शिफ्ट्स भी थे कि जैसे कि घोस्ट है वो कभी कभी एग्रेसिव भी हो रही है बिकॉज शी इज वेरी एडमेंट फॉर द थिंग दैट शी वांट्स. तो मतलब अगर आपने वो फिल्म लागिरा प्रेमाचं देखी होगी तो आपको पता चलेगा. एंड रेस्ट शी फॉल्स इन लव विथ अ गाय हु इज ऑलरेडी मैरिड. Oh God. So technically माझ्या नवऱ्याची बायको never left me. It never left me since it happened to me. So it was fun performing ghost. और उसमें ना जो मेरे अभी ड्रायव्हर दादा आहे मेरे पर्सनल, तो वो मुझे एक बात पूछते हैं, मॅडम मी तुमचा मूवी बघितला तर तो आवाज तुमचा आहे का? सो ही लिटरली आस्क मी कि तो आवाज तुमचा है का? मी म्हटलं म्हणजे ऑब्वियसली वो मेरा वॉइस है. ऑफकोर्स हम लोग डबिंग करते हैं बाद में, बट वो वॉइस मैंने ही दिया है खुद को ही डबिंग को. नो, इट डजंट साउंड लाइक दैट. वो बहुत सॉफ्ट और ऐसा, क्योंकि टेलीविजन में ज्यादातर मुझे निगेटिव और ग्रे शेड में देखा गया है ना, तो वहाँ पे ऐसा थोड़ा स्ट्रॉन्ग वॉइस होता है, बेस होता है, थोड़ा एग्रेसिव ये होता है. बट उसमें शी इज लाइक क्यूट एंड शी इज जस्ट इन लव विद दैट गाय, इनोसेंट. तो नहीं, दैट इज द थिंग ना, वी हैव टू डू, मतलब राइट फ्रॉम द वॉइस, एक्सप्रेशंस, आईज, एवरीथिंग, योर ईच एंड एवरी पार्ट हैज टू परफॉर्म व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. So yeah, that is also like a talent, like one big thing. But like you mentioned कि आपने काफ़ी नेगेटिव रोल्स किया है सीरियल्स में या फिर मूवीज़ में अभी रिसेंट में, तो फैंस उसको कैसे लेते हैं? लाइक यू नो, डू यू गेट लाइक अ हेट और यू गेट लव? लाइक फैंस अप्रिशिएट करते हैं कि यार शी इज सो गुड, लाइक नेगेटिव रोल को भी इतना अच्छी तरीके से दिखाना, तो वो कैसा रहा है? लाइक फैंस आर गुड सपोर्टिव और दे आर लाइक नो शी इज लाइक वेरी मच सपोर्टिव. मतलब द फर्स्ट Maya was not the negative role, I would say. It was the grey character because she had her own standards और उसका she had her way of life, you know, that the way she was living and उसके खुद के कुछ ambitions थे. She was very clear कि ये मेरा ऐसा है बस. सो जब कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स ही इतने क्लियर हो ना, तो वो इतना निगेटिव या फिर निगेटिव नहीं साउंड करता है. व्हेन उसको अच्छा बेस हो, whatever thing she is doing, it has got her own reasons. तो तभी और अगर आप वो कन्विंस कर पाओ अपने एक्टिंग से, तो वो ऑडियंस ना उसको बहुत अच्छे तरीके से लेती है. एंड दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज. तो मुझे ऐसे लगा था कि कैसे होगा ये, मतलब आई एम प्लेइंग द सेकंड गर्लफ्रेंड ऑफ दैट मैरिड गाय यार, तो ये क्या मतलब. तो बट द रोल मुझे बहुत अच्छा लगा था. द नरेटिव आई लाइक द मोस्ट, दैट ही फॉल्स इन लव विद दिस गर्ल हु इज वेरी एम्बिशियस एटसेट्रा, एंड आई वाज वेरी कीन ऑन परफॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. सो व्हेन इट कम्स टू टेलीविजन या फिर कोई भी ना, एक बात रही है मेरी वाइल चूजिंग द कैरेक्टर, दैट डज नॉट हैव टू बी लाइक क्या बोलते हैं आपण मराठीमध्ये बोलतो ना की सोशिक, की नाही मी सगळं सहन करतो अँड ऑल, वो सब नहीं चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट टू परफॉर्म अ स्ट्रॉन्ग वुमन कैरेक्टर. That's it, and that's the reason maybe I have chosen negative or grey, and whenever the positive will come, it has to be very strong enough. Not, I don't want to cry in front of you want to like आपको ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे करना है जिससे लोग इंस्पायर हो. Exactly, I want to portray a strong image of a woman, because I really feel that
girls look up to me, or else I have also looked up to someone, you know. Right. So I really want to put my image at least like that. So Right. there's no offense to anyone out here. The character was amazing. Like in Maja Navrachi Baiko, I'll tell you, I remember my nani also, she loved the serial and she used to be like, I'll tell you the two response, you know, कैसा था कि my nani was like कि अरे इसकी वजह से ही सब हो रहा है इसको नीचे, and there were other girls also like I love her, like उसका जो dressing है, जिस तरीके से वो बात करती है, and there were like two opinions, you know, so it was lovely, like lovely to watch Thank you on so screen much for with that. serial. मतलब सीरियल खत्म होके 1.5-2 साल हो गए, फिर भी अभी लोग अगर मुझे माया के नाम से ही जानते हैं, Yes, तो मतलब yes. that character has really put some impact Yes. on audience. और I feel very fortunate कि और माया मेरी मम्मी का नाम भी है, तो फिर I Lucky. really yes I really feel good Yeah. कि उस नाम से जानते हैं, और निगेटिव कैरेक्टर को भी इतना Yes. प्यार मिला है और अभी तक मिलता है कि आई रिमेंबर योर दैट पर्टिकुलर स्टाइल, जो मतलब ऐसे ही हम लोग डेवलप कर देते हैं ना परफॉर्म करते करते, जब भी हम लोग Yes. घुस जाते हैं तो वो हो जाता है. सो देयर इज द वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ स्पीकिंग, तो वो सब अच्छा लगा ऑडियंस को, एंड आई लाइक टू लुक ग्लैमरस ऑन स्क्रीन. Yeah. So You were whether definitely that is one television glamorous or- girl in that show. It was too good. थैंक यू सो मच. Definitely. So रुचिरा, जैसे मैंने बोला अभी कि you know मेरे नानी को वो कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं लगा था, एंड कुछ लोग थे जिनको आपका कैरेक्टर इतना अच्छा लगा था, बट आपका कोई ऐसे वियर्ड यू नो एनकाउंटर हुआ था फैन के साथ कि यू नो समथिंग गुड और समथिंग बैड, लाइक ऐसा रिगार्डिंग टू द शो? सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मुझे ना ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि निगेटिव या फिर ग्रे शेड होकर भी लोग पसंद कर रहे हैं. Yes. क्यूट विलन इज द टाइटल दे हैड गिवन टू मी, Oh, मतलब that's जो भी देखते थे ऑब्वियसली. और फिर जब भी मैं इवेंट्स को जाती थी, तो ये चीज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी कि लड़के तो ऑब्वियसली बोलेंगे ही ना, यू आर ब्यूटीफुल, ये वो, आई लाइक योर कैरेक्टर, आई लाइक योर पर्सनैलिटी वगैरह. लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बोलती थी, एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि व्हेनेवर गर्ल मैसेजेस ना, वो इतने बड़े बड़े मैसेजेस भेजते थे, अभी भी भेजते हैं कभी कभी, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि ओके, girls are liking me. That is, you know, altogether a different part. A woman loving woman, woman respecting woman. That is another thing. Yeah. So एक बार मैं इवेंट को गई थी, एंड दैट टाइम ना एक आंटीज का ग्रुप था ऐसे जो सीरियल देखते थे, और Right. कुछ महाराष्ट्रियंस थे, कुछ नॉन महाराष्ट्रियंस भी थे. तो उसमें से एक आंटी आई और उन्होंने लिटरली मेरे को उठाया, और फिर देन द बाउंसर्स हैड टू कम कि उनको रखो, और आई वाज लाइक कि मैं कंफर्टेबल रहती हूँ कि ये मेरे लोग हैं ना, मुझे पसंद करे ना, सो इट्स ओके, लाइक इतना इनिबिशन नहीं है, और वुमेन है ना, तो फिर ठीक है, आई एम कंफर्टेबल. बट आई वाज नॉट नोइंग कि शी इज गोइंग टू बी लाइक दैट, एंड उसने मेरे को उठाया, एंड शी फिर उन्हें बाउंसर्स वगैरह आए, फिर शी केप्ट मी डाउन एंड शी लिटरली किस्ड मी हियर कि आई लाइक यू, आई लाइक यू. फिर मुझे बहुत पसंद आया वो cute. I was expecting something or other. It's like why you were doing like this? No. So it's like a moment I have kept framed in my this memory lane. Oh, wow. So मुझे बहुत अच्छा लगता है कि okay, people are appreciating me in this way. This is just a small thing I have done. मतलब I have a long way to go. बहुत कुछ काम करना है. But ये जो प्यार है ना, यही work करता है आपके लिए. It like gives you the real boost and energy to work better and better. Like, you know, in Bollywood we have like Pooh and something. So in Marathi we have Maya. Like you started this whole thing of Maya. Like, you know, that you know, the way you carried yourself, the outfit, the way you used to talk, even the negative things or whatever. अरे thank you so much. वो जो आपने start किया ना, हाँ. what do you have to say about that? Like, I'll just say I was just carrying myself यार. तभी तो लॉकडाउन भी था, और जब ये सीरियल ऑफर हुई ना, तभी मुझे ऐसा बताया गया था कि ओके, दिस इज देयर जस्ट गोइंग टू बी 3 to 4 months, क्योंकि सीरियल ऑलरेडी ऑन एयर थी. 1.5 year सक्सेसफुली सीरियल रह चुकी है वो. और उसके बाद जब भी मुझे उस कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया गया ना, तो फिर आई वाज लाइक कि एक तो निगेटिव था अगेन, बट सिंस ना आई जस्ट मेंशन इट हियर, मैंने सिर्फ अपने एक इंटरव्यू में मेंशन किया है कि शनाया का जो कैरेक्टर था उसके लिए भी मुझे अप्रोच किया गया था, मैंने उसके लिए भी ऑडिशन दिया था, लेकिन तभी मैं ना थोड़ा उतना वेल ग्रूम्ड नहीं थी. आई विल जस्ट ऑनेस्टली एक्सेप्ट दिस, एंड आई वाज तभी मैं पॉजिटिव रोल्स देख रही थी कि नो, आई वांट टू डू पॉजिटिव. ये क्या मतलब, ये कैसे करूँ, ये नहीं, मेरी फैमिली क्या बोलेगी, टेलीविजन पे मैं
माझ्या नवऱ्याची बायको बन के कैसे रहूं, ऐसा वगैरह मेरा दिमाग में था. सो आई वाज आल्सो नॉट कीन ऑन डूइंग दैट पार्ट, कि क्योंकि टेलीविजन में अब तक वैसा हुआ नहीं था उतना बोल्ड कैरेक्टर. सो इवन शी परफॉर्म्ड इट रियली वेल. बट फिर 1.5 साल बाद जब भी मुझे माया का कैरेक्टर अप्रोच हुआ ना, दैट टाइम मैंने और थोड़ा बहुत काम कर चुकी थी सीरियल्स में, या फिर इंडस्ट्री में काम किया था, इंडस्ट्री घूम चुकी थी. तो फिर आई हैड एन आइडिया कि हाउ इट वर्क्स और मुझे कैसे स्टैंड आउट होना है. सो दैट्स व्हेन आई वाज लाइक, no, maybe Maya was meant for me, so that's why I couldn't do Shania. Universe had better plans. Yes. So तभी मुझे बोला गया था कि नहीं, next 3 to 4 months we are doing this. But उसके बाद लॉकडाउन भी लगा, और उसके बाद भी, मेरे जाने के बाद भी वो सीरियल 1.5-2 साल चली है. So total 3 to 4 years we have completed that show. तो मतलब ऑब्वियसली वो ऑडियंस को पसंद आया है. तो यही बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि yes, I could perform well and there was a good team behind the great show. Yes, lovely. Okay, now abhi thoda moving towards the fitness thing and all of that, because I mean you are drop dead gorgeous and fit. I want to know कि आपका secret क्या है? Are you like a hardcore gym person, या फिर आप कोई diet follow करते हो, या what? How is it like? I'll say I'm a hardcore yoga person. Oh. And recently I have added one more routine into my this daily routine. That is gym. अभी मैं हार्डकोर बन रही हूँ, बट आई एम हार्डकोर योगा पर्सन. आई एम डूइंग योगा फ्रॉम लास्ट like more than 10 to 12 years since I was in school. So I learnt it in the school, and then since then I continued doing it and I never stopped doing it. I mean I don't remember a day जब भी मैंने नहीं किया होगा. मतलब जब भी मुझे 4 AM 5 AM या फिर 6 AM का भी अगर शूट होना, so I make sure at least I'll do प्राणायाम या फिर सूर्य नमस्कार at least. So it is the consistency, I would say. So as you are asking about if you are asking about the secret, so I won't say particularly like it is gym or it is yoga or diet. Of course, there is a balance of all these things, but there has to be consistency. You have to love yourself, and then there has to be a good intent behind it. Right. So I always say that you cannot say like I want to reduce this much pounds, I want to gain this much. No, this should not be your primary intent. Your intent should be I want to feel good, I want to look good in front of mirror. I have to love myself when I see myself. So it's not even about what you say, like the beauty fat. standards. It's not about beauty or looking whether you're fat, whether you're thin. It's not about that. Right. It's about feeling super good. Yes, like it's just about feeling that. super light, feeling healthy. Yeah, feeling healthy. And yoga has had a very major impact on my life, because योगा से ना, आप अभी मैं जिम भी करती हूँ तो मुझे ना ये चीज़ें बहुत क्लियरली पता चल चुकी है. तो मुझे पहले पूछते थे कि whether you are into gym or not. नहीं, फिलहाल तो मुझे योगा सूट कर रहा है. So I'm not thinking of adding that routine to my daily life. बट योगा ना आपको मेंटली फिट करता है, फिजिकली तो करता ही है, इमोशनली भी करता है. सो देयर इज दिस बैलेंस व्हेन यू डू योगा एंड यू अंडरस्टैंड योर बॉडी वेल. एंड एज यू सेड डाइट ना, तो मुझे कभी भी पूछता है कि डाइट करते हो, तो मुझे ना ये समझ में नहीं आता है डाइट करते हो मतलब क्या, मतलब कुछ स्पेसिफिक खाना. तो यही नहीं चाहिए कि मैं जो अलग से कुछ खा रही हूँ ये मेरा डाइट है. नहीं, मैं जो सब खा रही हूँ ना, मेरा दिन भर का है, वही मेरा अच्छा डाइट है. सो आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि मैं ना कुछ स्पेशल कर रही हूँ अपने लिए. नहीं, हेल्दी ही चीज़ें खाओ ना. और ऐसा नहीं है कि मैं जंक नहीं खाती हूँ. मैंने में एक बार मुझे लगता है अगर मुझे वड़ा पाव खाना है मैं खा भी लेती हूँ. चीट डे, मैं आई डोंट इवन कॉल इट अ चीट डे. हाँ, मैंने खा लिया, हो गया. नेक्स्ट डे आई नो आई हैव टू, मतलब मैं तो ऑब्वियसली वर्कआउट करूँगी जो मेरा रेगुलर है. Burn those calories. Think about that much, you know. So वो बैलेंस अपने आप आ जाता है when you are so much that's why I said intent clear होना चाहिए. Once your intent is clear, you don't have to think about all these things. At least my experience says this. Lovely. I mean, I think yoga covers everything and it is like deeply connected to our culture. हमारे culture, हमारे जो roots है वो yoga से start हुए हैं. So I think over everything, I mean, yoga is to too good. Yeah, definitely. And just I wanted to do the strength training. तो उसके लिए मैंने डेफिनेटली जिम ऐड किया है. तो हर एक मीडियम का हर एक अपने तरीके से प्रोज एंड कॉन्स है, अलग अलग बेनिफिट्स है. डेफिनेटली. मैंने आपके देखे हैं काफ़ी, इंस्टाग्राम पे देखा, आपकी काफ़ी इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें यू टॉकिंग अबाउट
कृष्णा एंड स्पिरिचुअल लाइफ, यू नो, तो उसके बारे में हमें जानना है बिकॉज आजकल कैसे हो गया है ना कि लॉट ऑफ पीपल आर फॉलोइंग प्रेमानंद जी and are becoming spiritual or getting into the spiritual path, and you are like a modern girl, but like, you know, when we see that Hare Krishna or like spiritual part, like you're balancing both. तो उसके बारे में जानना है कि वो कहाँ से आया और उसको कैसे फॉलो करते हो. Very glad to hear this from you that you are balancing it both. बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं. उनको लगता है या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए. क्यों? दोनों क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं होना चाहिए? तो मेरे प्रोफाइल पे जो मेरी this is my profession, और प्रोफेशन ना भी हो, I'll choose ना what to wear, right, but I know where to wear what, so you don't tell me, right. So ये मत रखो यार, इधर ये या वो, दोनों हो सकता है, and I'm very proud that मैं हूँ वो दोनों, और एक्सट्रीमिस्ट हूँ. When it comes to Krishna, when it comes to spirituality, वो obviously there is a long way to go when it comes to spirituality. But at least I have started. और started मतलब ना, it's not what you choose. It chooses you. It chooses you, definitely. So it has happened that way. So whenever I say I love Krishna, so it is not I have chosen myself to love him. He has chosen me to love him. And it's some divine connection. Only Krishna followers, Krishna believers can. I'm a Krishna follower, so I can totally like, you know, there's a shine when we talk about Krishna. So now coming to the next part of your life, the Big Boss season 4. मतलब वहाँ जो हमने देखा, like TV movies में तो characters होते हैं, but Big Boss में हमने proper रुचिरा को देखा है, real रुचिरा को देखा है, strong and fierce, fighting for the, you know, the truth, fighting for herself. तो वो जर्नी कैसी थी? लाइक आपने लाइक प्रिपेयर किया था ऐसा कुछ कि बिग बॉस में जाने वाली हूँ, तो पिछले कुछ एपिसोड्स देखे थे और लाइक मैं जा रही हूँ, आई विल जस्ट गिव माय बेस्ट. हाउ वाज इट? बाप रे, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट. सो इफ आई हैव टू डिस्क्राइब माय जर्नी, आई विल जस्ट से डिग्निफाइड. सो दैट्स हाउ माय जर्नी वाज. मैं बिग बॉस देखती थी बहुत बचपन से, मतलब मेरी सिस्टर एंड मी, जब भी मैं इंडस्ट्री में भी नहीं थी ना, मतलब मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था. So we used to be like, my sister used to be like, अगर दीदी अगर आप जाओगे तो कैसा, ये ऐसे ही है, मतलब हाँ हम लोग भी झगड़ा करेंगे, ये वो टाइम पास में चलता था. And she used to be like, you won't be able to do it, because तभी मैंने बोला मैं बचपन में बहुत शादी innocent, पहले मैं ऐसी थी, फिर मेरे लाइफ में बिग बॉस आ गया, फिर मैं बदल चुकी हूँ. तो वो सब ऑब्वियसली इट वाज जोक्स अपार्ट. सो ऑब्वियसली हम लोग बिग बॉस देखते थे साथ में. वी यूज्ड टू हैव फन. दैट यूज्ड टू बी माय वन ऑफ द फेवरेट रियलिटी शोज. और आई हैड इमेजिन्ड माई सेल्फ इन द हाउस. आई डोंट नो हाउ, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मैं जाऊँगी, बट देन आई एंटर्ड इनटू द इंडस्ट्री. और मुझे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सीजन के लिए अप्रोच किया गया है. सेकेंड सीजन के लिए भी किया था. थर्ड के टाइम में मेरी बहन की खुद की शादी थी, सो ऑफ कोर्स आई डिड से नो. देन फोर्थ सीजन वाज अप्रोच. देन आई वाज लाइक okay, let's do this, let's see what's in there, because I was not really sure, क्योंकि अब पता नहीं अंदर जाके कैसे होगा. बट एक चीज़ ज़रूर थी, जितने भी मैंने सीजन्स देखे थे ना, हिंदी मैंने फॉलो किया था, मराठी के भी देखे थे, I was very much confident about myself, like okay, I'm this personality, I'm bright, I'm positive, I'll just bring out this charm in everyone, सबको हंसाऊंगी, मैं खुद भी हंसूंगी, एंजॉय करूंगी, ये सब जो सोच के मैं अंदर गई थी. बस अंदर जाके दूसरे दिन मुझे पता चला ये सब यहाँ पे नहीं चलने वाला, ये सब नहीं होता है यहाँ पे. और अनफॉर्चुनेटली बिग बॉस के अंदर जाने के 3 to 4 days before, I lost one of my closest person in my family. उसके next day मुझे call आता है कि you have to come tomorrow, you have this premiere rehearsal ना, grand rehearsal है. So I was not in that state and family was not knowing, just my mom dad knew, because वो disclose भी नहीं करना होता है ना. So मैंने नहीं किया था. Then dad told me to my brother that she has this commitment. So but I was not ready, I was not in that state. And my brother said, no, you have to go, you're a daughter of soldier. So I lost my uncle, whom I used to call Baba. So but then they pushed me, no, you just do it. And then I couldn't sleep the whole night, and I came to Mumbai, got freshened up and went and did that grand premiere ka song shoot. So it was like that, and next day cut to I had to move to the house. So I was not in that zone. I was completely shattered. So I'm a fragile, and उसमें भी इतना fragile होकर मैं अंदर जा रही हूँ. और अंदर जाकर ऐसे नमूने देखे हैं मैंने.
But like, तो but फिर वो बहुत ना लाइफ चेंजिंग Yes, एक्सपीरियंस था yes, मेरे yes, लिए, बट इट definitely, big वाज learning. मच नीडेड because the girl like me who always thought this world is beautiful, the world is pink, reality I check. had to see this side of the Yeah. world so that I could come out like this. So that's Yes. why I'll be always grateful for that particular show. Definitely. Yes, definitely. I think you definitely were one of the really amazing contestant in the show because, like you said, अभी हम लोगों को background नहीं पता था, you know, the things you have gone through and then you moved to And the I show. never mentioned it in the show. मतलब Yeah. कभी आफ्टर 3 to 4 weeks अगर मैं एक्सप्रेस हुई हूँ, और मैंने ना जानबूझ के कंप्रेस भी किया, नहीं मुझे नहीं चाहिए, सिंपैथी नहीं चाहिए इससे, Yeah. ये भी कि मुझे नहीं वो लेना ही नहीं है नाम या फिर ये चीज़ बोलनी नहीं है. सो आई वाज सो मच इनटू द शेल ना कि Right. so my family is very much proud of myself about that कि Definitely. you really played with dignity and आमचे संस्कार तो जपलेस is what they Right, say. I don't know, मतलब मराठी में अगर बोला जाए, since it's my mother tongue, वो रियल फिलिंग ना मराठी में आ रही आहे की आजच्या जगात ना संस्कारांना किती व्हॅल्यू आहे मला खरंच माहित नाही. म्हणजे इट गेट्स रियली डिफिकल्ट आउट देअर अँड Yes. बिंग द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री ना Yes. फार डिफिकल्ट होतं. But again, Krishna is there, he is watching, so I do Definitely. believe in that higher power, and Yes. I just surrender myself to him that he'll take care of it. Big Boss में जाके ना मैंने वही चीज़ सीखी है कि अगर a human without ethics is an animal, I don't want to be an animal. I'm a human, blessed to be in human's body, so I have to keep my ethics. There were many points that came like I have to live my ethics. No, I won't. I'll live the show. I won't. Right. We see very few people like you in the industry who are like prioritizing their ethics, their manners, their upbringing instead of TRP or fame. So it's lovely to know TRP that. मुझे बहुत मिला, एलिमिनेट होने के बाद भी मिला, so I don't have any regrets. I mean, वो कैसे था? Like आप eliminate होने के बाद आपकी life कैसी थी? Like how were the fans reacting in terms of opportunities? How was that phase? एक्चुअली वो ना हैबिटेट बहुत अलग होता है बिग बॉस में ना. there's like कंटिन्यूस इतने लाइट्स होते हैं वहाँ पे, एसी चल रहा होता है, यू डोंट इवन गेट टू नो दिन है या रात है, आप कितना घंटा सोते हो आपको ये भी नहीं पता है. आपके पास मोबाइल तो ऑब्वियसली नहीं है, देयर इज नो वे टू कम्युनिकेट विद द आउटर वर्ल्ड. Yes. बट आई एम अ ह्यूज सन लवर. मतलब सनसेट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. इट गिव्स मी सम काइंड ऑफ एनर्जी. और तभी मुझे स्काई नहीं दिख रहा है, सन नहीं दिख रहा है, आप लोग अंदर पागल हो जाते हो एक पॉइंट पर. एंड दैट इज द मोमेंट ना कि दैट इज योर टेस्ट कि आप क्या मतलब झगड़ रहे हो, situation में भी losing कैसे, it. हाँ. Of course anyone is going to lose it, but at what point? Right. That literally describes you as a human. Right. So वो तो होता ही है. Yeah, like in the good times also it's very easy to pretend to be someone else, but in the tough time also sticking to your ethics or your upbringing, that is a challenge, and I think Exactly. you have done amazing in that. Thank you. So Ruchira, just you mentioned, how was the life in college, the theater, about your parents. Cut to now, the image you have on Instagram, the lavish lifestyle, your clothes, fashion, beauty, but I'm sure you had your struggle, so we want to know about that. How was your life before getting famous? You had any difficulties? कैसा था वो? Yeah, one can easily form a perception looking at me, right? So Yes. when I get to know it from the other end, at that time I'm like, oh, ऐसे लगता है मेरे बारे में, मतलब ऐसे लगता है कि इस बंदी को बहुत एटीट्यूड है. Oh, ऐसे लगता है मेरे बारे में. फिर then after when they get to know me, after living with me, like after 1 or 2 months, they're like, oh, ये तो completely अलग है. Right. So that's why I said ना मेरा circle ही बहुत closed है. Right. And that's what I prefer. I have been preferring over the years. And when it comes to about struggle, so मुझे पता नहीं है कि वो struggle है या नहीं, because मैं जिनको एडमायर करती हूँ उन्होंने ये चीज़ कही है कि इफ़ आई एम गेटिंग टू डू व्हाट आई लव देन इट इज़ नॉट स्ट्रगल. सो आई वोंट नेम इट एज स्ट्रगल, बट ऑफ कोर्स देयर वर डिफिकल्टीज दैट आई हैड टू कम अक्रॉस, बट दोज वर द डिफिकल्टीज विच हैव बिल्ट मी. सो आई थिंक दैट वाज माय प्रिविलेज. मतलब ना अभी बहुत कम लोगों को ये पता होगा, या फिर नो वन वुड बिलीव इफ आई से दिस कि लास्ट ईयर तक आई वॉज लिविंग इन 1 RK. मैं 1 रूम किचन में ही रह रही थी. जब मैंने मेरी 10th की, मैंने 12th, मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब जहाँ पे भी स्टडी किया, तो जितने भी परसेंटेज लाए हैं, मेरे लिए सेपरेट बेडरूम नहीं था. एंड आई डोंट हैव एनी कंप्लेन विद दैट.
My Right. father, my mother has worked really hard to give the best what Right. they could do for me, you know. Right. And that's why I call it as a privilege, because जो चीज़ मेरे पास नहीं है ना, तो फिर वो पाने के लिए मुझे झगड़ना पड़ा है, वो लड़ना पड़ा है. Right. And that is the quality I have developed in myself, which I really admire a lot. Yes. और फिर अभी भी मुझे जो भी कुछ चाहिए, like I love luxurious life. I love to live luxurious life, and I want to give my parents that luxurious life. Yes. And I'm working really hard for that. You are working really hard for that. I'm very Yes, sure. Many yeah. girls out there, many boys out there are working hard for Definitely. it. So we should not count our struggles. I should say that we have to count our blessings Yes. and find the strength कि जो भी निगेटिव चीज़ है, या फिर निगेटिव या फिर कोई कुछ भी चीज़ नहीं है ना हमारे पास, तो उसको ओवरकम कैसे किया जाए. तो वो जो भी हम करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो क्वालिटी डेवलप होती है, दैट इज अ गेनिंग, जो Yes. शायद वेरी वेल प्रिविलेज्ड मैन के पास ना हो. Definitely. So that is the thing makes yourself a man or a woman. Definitely. Completely agree to this point of yours. I am sure that you have covered the Marathi industry. आपके बॉलीवुड के भी बहुत प्लान्स होंगे, ग्लोबल के भी है जो अभी हम डिस्कस करेंगे. बट जस्ट आई वांट टू आस्क, अगर बॉलीवुड में आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप कौन से एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे और क्यों? ओके, तो वैसे फेवरेट्स तो ऑब्वियसली बहुत है यार, मतलब ऐसे टू Yeah. पिक एनीवन कि इसके अगेंस्ट काम करना है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए टू आंसर दैट. But like someone you admire, like you are a person who is built on values and discipline. तो वैसे आप किसी को admire करते हो जिसका discipline या फिर struggle देख के you're like कि मुझे इनके साथ काम करना है. See, वैसे भी ऑब्वियसली बहुत है. सो आई वुड रियली वांट टू टेक फ्यू नेम जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुकी हूँ. ऑब्वियसली शाहरुख खान तो है ही, हम सबके इंस्पिरेशन है वो. SRK fan. द वे ही हैज़ कॉन्कर्ड द वर्ल्ड ना, मतलब अभी जो मैं शो भी कर रही हूँ, जहाँ पे मैं कंट्रीज में भी मैं जाती हूँ ना, तो वहाँ पे कौन है आपका फेवरेट एक्टर, शाहरुख खान, मुझे नाम ऑलरेडी पता होता है, शाहरुख खान, देन फिर अदर खान्स काम. Yes. तो वो जो लेगेसी उन्होंने बिल्ड की है ना, शाहरुख खान, Definitely. प्रियंका चोपड़ा, आई लव दिस पीपल, यू नो. Yes. बट अगर काम करने की बात हो तो आई रियली एडमायर विकी कौशल अलॉट. मुझे बहुत ज़्यादा Yes. पसंद है, क्योंकि वो हर एक जो कैरेक्टर है ना, एक तो उन्होंने बहुत काइंड ऑफ, ही हैज़ प्लेड अ वैरायटी ऑफ He's कैरेक्टर्स. versatile ही इज completely. वर्सेटाइल. Yeah. उन्होंने कमली प्ले किया है, उरी में जो प्ले किया है, राजी में ही प्लेड अ पाकिस्तानी ऑफिसर इन राजी, एंड Yes. स्टिल ही मैनेजेस टू गेट द अटेंशन. Definitely. और फिर वो एक राजी में उनका सीन है, विकी कौशल जी की, मुझे ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उनके हर एक फिल्म में से ना मुझे एक एक सीन उनका याद है, Definitely. जो उनको ना डायलॉग्स नहीं है वहाँ पे, लेकिन वो सिर्फ अपने इमोशंस और आंखों से बोल देते हैं जो भी कुछ Yes. बोलना है. सो व्हेन ही उनको देखने टाइम ऐसे नहीं लगता है कि विकी कौशल को देख रही हूँ. He is completely blended in into that that character, he Every time I literally see. surrenders himself Yeah. to that character. Yes. फिर वो पाकिस्तानी ऑफिसर ही क्यों ना हो, तो वो जो एक Yes. मोमेंट आई जस्ट वांट टू मेंशन दैट, जब वो उन्हें पता चलता है कि उनकी वाइफ शी इज इंडियन Yeah. Yes. इंटेलिजेंस में से होती है वो, Yes. एंड दैट टाइम जो वो रियलाइज करते हैं, वो जो उनका रिएक्शन है, ऐसे बहुत Yes. सारे हैं, पूरी का Speechless. भी एक रिएक्शन है, मुझे बहुत Recent पसंद है performance वो. in Chhawa. छत्रपति संभाजी महाराज का Yes. कैरेक्टर ही इटसेल्फ इतना बड़ा है, And to carry the to responsibility. carry that responsibility on his shoulders. Definitely. और जिस तरीके के साथ वो परफॉर्म करते हैं ना, और अपने आप को जस्ट वो न्योछावर कर देते हैं बस, तो वो Completely, एक्टर yes. विद इन हिम ना, आई रियली एडमायर अ लॉट. सो उनके Yes, साथ yes. उनके साथ सीखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा. Yes, yes. उसके बाद आई रियली एडमायर अल्लू अर्जुन अ लॉट. Oh. पुष्पा, मतलब यार झुकेगा नहीं है, मैं भी Okay. झुकूंगी नहीं. सो द कैरेक्टर, क्या कन्विक्शन है उनका. Yes, वो जो yes. गाना है, जो जंगल का जो गाना है, Yeah, शुरुआत का ही उनका इंट्रोडक्शन का नॉर्मल स्टेप है, वो शोल्डर से कुछ बस इतना करते हैं, बट But वो still that step, swag. मतलब and- क्या दैट स्वैग, ये कन्विक्शन कहाँ से लाते हैं. Yes, yes. सो आई लव हिम फॉर द कन्विक्शन पार्ट. अल्लू अर्जुन, उनका स्वैग, उनका स्टाइल. और आई वुड से मनोज वाजपेयी Ah. इन फैमिली मैन. ये मतलब ये तीन अलग अलग टाइप्स के Yes, yes, yes. कैटेगरीज परफॉर्म करने वाले ये तीन अलग अलग एक्टर्स हैं. उनका अलग अलग स्टाइल है आई वुड से, बट फैमिली मैन मैंने रिवाइंड कर करके सीन्स देखती हूँ ना, जिस सीन में कुछ नहीं भी होता है ना, उस सीन में वो एक्स्ट्रा रिएक्शन डाल देना अपने आप से, मनोज वाजपेयी Right. जी. तो ये सारी बहुत सारी सीखने की चीज़ है. तो Definitely. आई जस्ट होप
आई लर्न फ्रॉम दिस पीपल. जब भी मैं Yes. काम करूँ तभी मैं सीखूंगी बहुत ज़्यादा. What about actresses? Like we have very like बहुत सारी women centric movies भी बन रही हैं बॉलीवुड में. So what about actresses? उन किसी actress के साथ काम करना चाहोगे? कौन रहेगी वो? काम तो ऑब्वियसली क्यों नहीं करना चाहूंगी. कौन मैं होगा बहुत वो? सारी एक्ट्रेसेस है. मुझे प्रियंका चोपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है. Yes. आई जस्ट वांट टू लुक एट हर लाइक दिस. Yeah, especially when she's talking. When मतलब she वो is जब बात talking, करना शुरू करती I love है. her. So Priyanka Chopra, Yes. Taapsee Pannu has played like many strong roles Yeah. in her film. So I really admire her a lot. Alia plays a really strong character. जब ये women centric film होती है. Yes, yes, yes. तो आजकल वो women centric फिल्में एक तो कम बनती है या फिर उसको अपने shoulders पे लेना, ऑडियंस को खींचना itself, क्योंकि वो पहले से जो चल रहा है, गंगूबाई हो या फिर जिगरा फिल्म हो, तो वो ब्रेक करना छोटी बात नहीं है. तो उसके लिए उनको अप्रिसिएशन डेफिनेटली बनता है. आई लाइक रश्मिका, आई लाइक समंथा एज वेल. सो या देयर आर मेनी एक्ट्रेसेस आउट देयर. अभी मराठी हो गया, बॉलीवुड हो गया. आई एम एंड नाउ वी आर मूविंग टू द ग्लोबल पार्ट बिकॉज आई मीन यू हैव नॉट लेफ्ट दैट एज वेल. सो हम उस शो के बारे में भी जानना चाहते हैं जिसको आप होस्ट कर दिया. यू ट्रैवल टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज. तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है, यू नो, like hosting that show? So I'll start from here. Ki I was a non-traveler person. I was a houseworm, but I'm no longer that person anymore. Okay. Because I was asked for this show, I gave the audition, I got selected, and it's an international travel show which I'm hosting, and Bolly Lands. और उसमें हम लोग the concept of the show is like we take you to those locations outdoor in the international locations where our Bollywood films have been shot. तो जहाँ पे हमारी फिल्मों के गाने और फिल्मों के कुछ सीन्स शूट हुए, उस लोकेशंस पर लेकर जाते हैं और उसके ट्रिवियाज और इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं अलॉन्ग विद द अदर थिंग्स, जो फूड कल्चर जो होता है हर एक कंट्री का. तो दैट इटसेल्फ वेरी इंफॉर्मेटिव शो. और उसमें फन भी है क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा मतलब आई लाइक टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन दैट वे. और लोग बोलते हैं यार तू तो घूमती है, लेकिन उनको नहीं पता है वहाँ पे जाकर मतलब जो 4-5 घंटे मुझे सोने मिलते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट हैव टू बी ऑन माई टोज 24/7. सो दैट्स अ चैलेंजिंग पार्ट. बट अगेन एक्सप्लोरिंग न्यू कंट्री, न्यू पीपल, न्यू प्लेसेस, यू गेट टू लर्न अ लॉट. सो वो एक्सपीरियंस से आप बहुत रिच हो जाते हो. एंड नॉन ट्रैवलर से अभी जो मैं ट्रैवल लवर बन चुकी हूँ, दैट क्रेडिट जस्ट गोज टू माई पैशन फॉर वर्क. क्योंकि ये वर्क ही था, वर्क के लिए आई वेंट आउट एंड देन आई स्टार्टेड लविंग इट. So it's like for camera, for work, I'll do anything. Lovely. That was amazing to know about that show, and I'm sure because लोगों को बहुत interest होता है, and I'm sure that if they can't travel also, आपके show के you know through वो देख सकते हैं Exactly. कि ये movie में क्या हुआ था, कैसे वहाँ पे shoot हुआ था, आजू बाजू में क्या था. So it's lovely. Do watch that show, guys. So Ruchira, quickly moving to the rapid fire round. Brace yourself. I hope you have the hamper ready. Yeah, we have a gift from the sponsors. No problem. Okay. The first question: guilty pleasure in food, vada pav, pizza, or ice cream? I'll add 2 guilty pleasures. Yeah. It's vada pav and pani puri. Oh yes. How did we miss whenever the chat? whenever I come from international trip ना, so as we spoke about the diet as well, ये सब ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ usually क्योंकि वो बन गया वैसा. बट आई मेक श्योर कि 1-2 महीने में एक वड़ा पाव तो चाहिए मुझे, क्योंकि वो हो जाता है क्रेविंग या फिर देखकर मुझे लगता है वो अंदर का मुंबई कर, you know, guilty pleasure. Yes. Okay. The second question is one role you wish you had done from any Hindi serial or Bollywood film. Okay, so when it comes to Hindi serial, there's just one serial that just pops out in front of my eyes, and that one character. Again, the name of that character is Maya. Behad, Jennifer Winget. My she God, was amazing. She's was just amazing. So even the I mean the people who have created that show, उन्होंने बोला है कि अगर Jennifer would not do that show, I think Maya would never be created. Yeah. And Maya is I iconic. believe Completely agree. Love that. And Bollywood film, I would say, as I like to perform like female-oriented script, of course I would love to do that. So एक राजी फिल्म मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कि कैसे एक innocent girl का वो transformation था, और it was again a patriotic film. तो वो, और एक दीपिका की फिल्म आई थी छपाक. Yeah. So that was again a really great movie. Beautiful movie. Yeah. So वो तो these 2 definitely. films I remember precisely. Lovely. 4 things always in your bag when you step out. There are many things actually. So
I would not mention my phones and wallet because वो तो obviously रहते हैं. So I'll say first is my water bottle. वो हमेशा रहती है. Depending on the season, either I carry warm Stay water. hydrated. Stay hydrated. So depending on the season, I carry warm water or the normal one. Normal. और copper vessel में रहता है water. So I carry that water. Second, I have shades. I do like to carry shades because I'm very much shade lover. So shades रहते हैं मेरे पास हमेशा. Third thing, कुछ मील रहता है मेरे पास क्योंकि मुझे बाहर का खाना वैसे भी पसंद नहीं है. तो अगर ऑब्वियसली शूट के लिए जाती हूँ तो मील बॉक्स ही रहता है डाइट का पूरा. बट अगर कहीं पे भी जाना है मतलब छोटी बैग में भी रहना है तो फिर एटलीस्ट ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन बार और समथिंग लाइक दैट, तो वो एक मील रहता है छोटा सा. Yes. एंड द फोर्थ आई वुड से ये जो चीज़ हमेशा मेरे साथ रहती है ना, वो जब भी मैं लॉन्ग जर्नीज के लिए जाती हूँ तो मैंने खुद एक पेंटिंग किया हुआ है कृष्णा का. Oh, तो वो एक wow. छोटा सा पेंटिंग रहता है. सो व्हेनेवर आई ट्रैवल इंटरनेशनली या फिर यहाँ पे भी अगर मुझे मोर देन 3 to 4 days जाना होता है ना, सो आई टेक दैट पेंटिंग अलॉन्ग विथ मी बिकॉज जहाँ पे भी मुझे रहना है अपार्ट फ्रॉम द होम, सो आई लाइक टू क्रिएट द होमली वाइब इन देयर. So Definitely. I keep that painting near my bed or somewhere, so that I feel like it's my home. And Wow. It's kind of a belief that it's not me who is taking him, it's he who is taking me to all these places. So yeah, Lovely. that is a thought. बट हमें ये भी नहीं पता था कि आप एक आर्टिस्ट हो जो पेंटिंग्स भी करते हैं. तो ये कहाँ से आया है, मतलब ये बचपन से ही आया. आई वॉज ऑलवेज एन आर्टिस्ट और Okay. मैंने कहीं से ट्रेन नहीं किया है, मतलब स्कूल में जितना सीखा उतना. और मे बी आई हैड दैट इन मी. इट वॉज बाय गॉड्स ब्लेसिंग कि मुझे वो आर्ट है. और मैंने मुझे थोड़ा बहुत क्रेडिट इसलिए जाता है क्योंकि मैंने वो कंटिन्यू किया, कैरी फॉरवर्ड किया कॉलेज में भी. अभी सेट पे भी जब भी रहती हूँ तो फ्री टाइम में Wow. करती हूँ. और मेरे पेंटिंग्स में अगर ज़्यादातर आप देखोगे तो ज़्यादातर स्पिरिचुअल है. कृष्णा का तो रहता है. मैंने कर्णा लवर भी हूँ मैं, राधे या कर्णा, तो उनका है. शिवा का है, महादेव शिवा का, स्वामी समर्थ. सो छत्रपति शिवाजी महाराज, शिव राज्याभिषेक मैंने 9th स्टैंडर्ड में निकाला था. सो या ये सारी चीज़ें हैं. मतलब आर्ट का पूरा भंडार है यहाँ पे. रिलेशनशिप स्टेटस, सिंगल, टेकन और कॉम्प्लिकेटेड, व्हाट इज इट लाइक? आप उस पे कुछ लाइट डालना चाहेंगी? ऑफ कोर्स मैं कहना चाहूँगी. इट्स Okay. मे बी यू विल गिव द हैम्पर टू मी फॉर दिस क्वेश्चन. या currently I'm committed to myself, वाओ. my happiness, my progress, yeah, and just to live happy. So that is my commitment as of now. Smart answer. Yes. Okay, but just in case, after you get committed, what would your dream wedding look like? Something like grand or a glam, or like chill and minimal, just with the closed Minimal, ones? intimate one. Don't spend much on the wedding. Yeah. Spend it on your future. Uh-huh. Spend it on your goals. Spend it on your travel. Yeah, और, that's the new trend, you know, small yeah, weddings and please. travel with the money. हाँ, वैसा बन मतलब गया है. ठीक है. मॉम डैड का रहता है कि सबको खाना देना है, वो तो देते ही रहते हैं यार हम लोग. मतलब इंडियन फैमिलीज आर नोन फॉर दैट. Yes. बट नहीं, ज्यादा मत खर्चा करो यार. ठीक है, एक दिन रहता है, अच्छे से सेलिब्रेट करो. Right. डोंट स्पेंड मच. Lovely. If you could swap your lives with one actor for a day, who would it be? ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. दैट वुड बी, एज ऑफ नाउ, अभी जो मुझे आंसर आ रहा है, I'll say अनुष्का शर्मा. Wow. For the obvious Too good. reason. Too good. Yes. No, it's just that I love and admire Virat Kohli a lot. Yeah. So that's the only reason. Yeah. And I think she's like you know, bold, fierce, spiritual. So And she's very real. She is very unfiltered. Yeah. I like that thing about her. also she's because of you. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इन बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी उनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो बहुत रियल है. वो अपने थॉट्स को लेके बहुत फर्म रहती है, भले आजू बाजू में कुछ भी हो. जैसे यू टोल्ड कि बिग बॉस में जैसे हुआ कि लोगों ने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज दी कि मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ, बट यू आर लाइक कि दिस इज व्हाट आई एम एंड आई विल स्टिक टू दिस. Yeah. सो आई सी अ लॉट ऑफ यू नो Must be. resemblance in both of you. वैसे one last question. Okay, describe yourself in one word or one line. One word would be, I'll say unfiltered. Yeah. I'm kind of unfiltered. Completely and agree to if that. I have to describe myself in one line, that would be, so I'll just elaborate it, okay? Yeah, definitely. So when it comes to
like my name, Ruchira, it has 7 letters, and rainbow also has 7 colors. So I describe myself as a rainbow full of vibrant colors. So not just colors, vibrant colors, Wow. because I just love to enjoy each and every color of life. And even for that matter, my favorite color is also white, because when we mix all these 7 colors of rainbow, Yeah. it forms a white color, white light. It Wow. forms. So that is the meaning behind it, and so yeah. That's too good. Thank you so much, Ruchika. मुझे आपसे बात करके बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया, and to know you in person, I'm sure आपके fans को भी बहुत, you know, they must have enjoyed this, because मतलब जो knowledge आपने share की है, जो आपकी journey share की है, you know, with your fans, and I'm sure बहुत सारे लोग inspire होंगे इससे. And I want to know, how was your experience? आपको कैसे लगा? I had fun. मतलब Yeah. मुझे मतलब मैं for a while तो भूल ही गई थी यहाँ पे cameras है. I was just like having a chit chat after Yeah. a really long, कि किसी के साथ बैठकर मस्त गप्पे मार रही हूँ, तो फिर मुझे Right. बहुत ज़्यादा मजा आया. Thank you so much for Lovely, having me here on Time for Chai. I had a great time. Thank you so much. Thank you. So Ruchira, this is a small, very small gift from the team of Time for Chai and our sponsors, Shifu Express. I hope you like it. Here Thank it you is. so much. Thank you so much. Means a Welcome. lot. Thank you. So all of you guys, अगर आपको भी अच्छा लगा, you know, रुचिरा की journey जान के, कि जैसे, you know, how she started from a middle class family to theatre, then TV serials, फिर movies, फिर रियलिटी शो, उसके बाद यू नो हर ड्रीम्स इनटू बॉलीवुड, एंड नाउ शी इज गोइंग ग्लोबल. यू नो, आई होप ये चिट चैट आपको अच्छा लगा, and so please make sure, you know, to like, share and subscribe to our channel, and keep watching Ruchira and her upcoming projects. Till then, signing off guys. Bye. Bye. Keep watching Time for Chai.